Question number 21. The IUPAC name of isopropyl chloride is, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता है जिसके सेकंड कार्बन पे हैलोजन अटैच होता है, और ये हो गया क्योंकि सेकंड कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप है तो 2-chloropropen. So A is the right answer. 2-chloropropane is IUPAC name of isopropyl chloride. Number 22. The order of reactivity of halide toward SN2 reaction. SN2 reaction जो होता है डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे. जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही फास्ट SN2 रिएक्शन होगा, और SN2 फॉलो करता है ऑर्डर सेकेंडरी, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी. प्राइमरी कार्बोकेटाइन फास्ट SN2 देगा, फिर सेकेंडरी, देन टर्शरी. सो B इज द राइट आंसर. Question number 23. The reaction of chlorobenzene with Cl2 in the presence of FeCl3 gives. तो chlorobenzene जब रिएक्ट करता है Cl2 in the presence of FeCl3, we get orthochloro and parachlorobenzene. तो क्योंकि क्लोरीन ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और ये बनाता है ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. सो ए इज द राइट आंसर. Question number 24. Which of the following statement is wrong? CCl bond in chlorobenzene is shorter than in CH3Cl. CCl bond in chlorobenzene has a partial double bond character. C. Chlorobenzene is more reactive than CH3Cl in SN1. Yes, ये गलत है कि chlorobenzene is more reactive than CH3Cl in SN1, क्योंकि इसमें जो chlorobenzene होता है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं बेंजीन रिंग से, और इस वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाता है. सो सी इज द राइट आंसर. क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन CH3Cl इन SN1. ये लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाता है. Hence is less reactive than CH3Cl. Question number 25. Which of the following doesn't give Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction कौन नहीं देता? एक क्लोरोबेंजीन, B नाइट्रोबेंजीन, C टोलुइन और D बेंजीन. सो B is the right answer. B is the right answer, नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस वजह से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देता. Question number 26. The product of chlorobenzene with sodium metal in dry ether is A. Benzene, B. Biphenyl, C. Benzyl chloride or D. Benzaldehyde. So biphenyl is the answer, and this reaction is known as Wurtz-Fittig reaction. This reaction is very important, is used to make biphenyl. Question 27. In SN1 reaction, the rate determining step is A. Nucleophilic attack, B. Departure of leaving group, C. Proton transfer or D. Bond formation. Yes, B. Departure of leaving group is the rate determining step, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन स्लोएस्ट होता है, विच इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, इस वजह से डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप. क्वेश्चन नंबर 28. द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोबेंजीन प्लस कॉपर साइनाइड इज. क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे कॉपर साइनाइड से तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगा फिनाइल साइनाइड और बेंजोनाइट्राइल. सो ए इज द राइट आंसर, बेंजोनाइट्राइल. 29. Which compound have a highest dipole moment? A. Chlorobenzene, B. Dichlorobenzene, C. Metadichlorobenzene or D. Paradichlorobenzene. So B is the right answer. Orthodichlorobenzene have a highest. Question 30. The IUPAC name of benzyl chloride is. तो बेंजाइल क्लोराइड होता है और इसका IUPAC नेम होता है फिनाइल मिथाइल क्लोराइड. सो फिनाइल मिथाइल क्लोराइड, डी इज द राइट आंसर. 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी हैलाइड? सेकेंडरी हैलाइड कौन सा होता है? ए. आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. यस, ए इज द राइट आंसर. आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज अ सेकेंडरी हैलाइड विच इज this is isopropyl chloride and is a secondary halide. Question number 32. Chlorobenzene doesn't undergo nucleophilic substitution easily because of A. CCl bond is very strong. Yes. Resonance stabilization. Yes. Carbon is sp2 hybridized. Yes. Or D. All of these. Yes. D is the right answer. All of these. D is the right answer. All of these. ये क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इस वजह से ये वाला जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है और CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये
सही हैं, तो आंसर डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 33, वुड्स रिएक्शन इन्वॉल्व ए अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम गिव्स एल्केन, यस ए इज द राइट आंसर। वुड्स रिएक्शन में जब अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर वी गेट एल्केन, सो ए इज द राइट आंसर। 34, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड द प्रोडक्ट इज, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और जब इसे रिएक्ट करवाते हैं HNO3 और H2SO4 से, तो ये ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है और हमें मिलता है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरीन, तो हमें मिलता है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1, तो SN1 डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। जो ऑर्डर होता है टर्शियरी कार्बोकेटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, देन प्राइमरी। टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी, सो बी इज द राइट आंसर। नंबर 36, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मीथेन प्लस क्लोरीन गिव्स, क्या देता है, तो आंसर है सी मिक्सचर ऑफ क्लोरोमीथेन। जब मीथेन को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन से तो हमें मिलेगा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 and CCl4. So these are the mixture of chloromethane we get when we react methane in the presence of light plus chlorine. Question number 37, the boiling point of haloalkane increases with, तो जो boiling point होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के। मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन इंक्रीज विद द डिक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन, और बी इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन, सी डिक्रीज इन मोलिकुलर वेट, और डी नन, सो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन। Number 38, the conversion of alcohol to alkyl chloride by SOCl2 is known as Swart reaction, Finkelstein reaction, Darson reaction और Lucas test, yes C, Darson's reaction। जब अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं SOCl2 से तो हमें मिलता है अल्काइल क्लोराइड प्लस HCl गैस प्लस SO2, ये दोनों एस्केपेबल होती है और हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल क्लोराइड मिलता है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज Darson's reaction, and this reaction is very important for converting alcohol to alkyl chloride. Question number 39, which is used in dry cleaning, A chloroform, B carbon tetrachloride, C dichloromethane, or D ethyl chloride? Yes, B. The answer is B, carbon tetrachloride is used in dry cleaning. Now question number 40, in the presence of KCN alkyl halide gives, तो alkyl halide KCN के presence में देता है alkyl cyanide plus KX, so और जिसे हम नाइट्राइल भी कहते हैं, so C is the right answer. We get nitriles when alkyl halide is treated with the KCN.